Yesterday we have discussed about the chemical formula, and I have given you to write the chemical formula of 50 compounds. Now today we will see the molecular mass of a compound और एक molecule. कोई भी जो molecule है उसका molecular mass हम कैसे निकालेंगे. Suppose this is the molecule of water. ये किसका molecule है? Water का molecule है. It contains two type of atoms. इसमें कितने तरह के एटम हैं? दो तरह के. And there are three atoms here. Two hydrogen atom and one oxygen atom. So, if we add the mass of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, then we will get the molecular mass of this molecule, H2O molecule. जैसे कि क्लास में 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं और हम पूरे क्लास के बच्चों का मास अगर निकालना चाहते हैं और हमारे साथ एक साथ जो है हम बैठा करके सबको नहीं तोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे का मास लेंगे और उनके मास को जोड़ देंगे तो कुल कक्षा के बच्चों का मास निकल जाएगा. उसी प्रकार से यहाँ पर जो वाटर है इसमें दो तरह के एटम हैं, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम. तो हाइड्रोजन के दो एटम का मास निकालेंगे और ऑक्सीजन के दो एटम का मास निकालेंगे और उनको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो वी मे राइट मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल. H2O मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? इसका 2 into mass of H atom plus, because one atom is here, so 1 into mass of O. H एटम के मास का दो से गुना कर देंगे और O एटम के मास को 1 से गुना कर देंगे, फिर को जोड़ देंगे तो H2O मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा. So this is your 2 and mass of H atom is 1 plus 1 and mass of O atom is 16. So 2 plus 16, that will be 18. And the unit of mass, the atomic mass unit is U. So you have to write U. So the molecular mass of H2O molecule or molecular mass of H2O. You can say molecular mass of H2O. We can write molecular. That means molecular mass means mass of one molecule. Molecular mass of H2O means mass of one molecule of H2O will be 18U. Molecular mass of H2O is equal to 18U. So in this fashion, you can find the mass of any molecule. You will see the next example. Molecular mass of carbon dioxide CO2 is equal to 1 into mass of C atom plus 2 into mass of O atom. Because here is one atom of carbon, so it is multiplied by 1, and two atoms of oxygen, so mass of oxygen atom is multiplied by 2, because here is two atoms of oxygen. So this will become 1 into, and the mass of carbon atom you know 12, and 2 into mass of O atom is 16. So this will become 12 plus 32, that will be 44U. So this is the molecular mass of CO2. So now it is very easy to determine the molecular mass or formula unit mass of any compound.
molecular mass of HNO3. There are three types of atom. One is hydrogen, second is nitrogen, and third is oxygen. And number of H atom is 1, number of N atom is 1, and number of O atom is 3. So we will add the mass of all the atoms, then we will get the molecular mass of HNO3. So what will be like 1 into mass of H atom plus 1 into mass of N atom plus 3 into mass of O atom. Now 1 into mass of H atom 1 plus 1 into mass of N atom is 14 plus 3 into mass of O atom become to 16. So it will become 1 plus 14 plus 28. So this will become 63U. 63U. Now अगर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखेंगे मास ऑफ H2SO4 molecule or molecular mass of H2SO4 is equal to, here is 2 atom of hydrogen, so 2 into and mass of hydrogen is 1 plus 1 atom of sulfur, so 1 into the atomic mass of sulfur is 32 and number of atom of oxygen is 4, so 4 into the atomic mass of oxygen, that is 16. So you may write directly. Here we have written in detail and you can write it in short also. So this will become 2 plus 32 plus 64 and it will become 98U. So molecular mass of H2SO4 is equal to 98U. So you have written so many formulas of the chemical formulas of the compounds. So you should calculate the molecular mass of some molecules. Now your homework is calculate the molecular mass of H2, N2, N2O, NH3, CaO, CaCO3, HCl, KOH, NaCl, NaHCO3, SO2, etc. So you have to calculate the molecular mass of these compounds of this molecule H2N2, SO2, NO2, N2O and CH3, HCl, KOH, NaCl, NaCO3. These are the. अब इसके आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसमें समझना है, ध्यान देना है। ये इजी भी है, नहीं समझने के थोड़ा कठिन भी है, लेकिन मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा।
मोल, मोल कॉन्सेप्ट। मोल बड़ा अनमोल, केमिस्ट्री में जो है वो मोल जो है वो बड़ा अनमोल है, क्योंकि मोल के कंसेप्ट पर ही केमिस्ट्री के सारे कैलकुलेशंस आधारित हैं। मोल पर ही आधारित है, मोल के आधार पर ही सारी कैलकुलेशंस होते हैं। और मोल को समझना तो बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल मैं कहानी बताता हूँ आप सबको कि मान लीजिए कि आपको कोई 2 गोभी मांगे आपको, तो उसे 2 गोभी गिन कर दे सकते हैं। आपको 2 बुक कोई मांगे, उसको 2 बुक आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे जो देने वाली चीज है वो छोटी होती जाती है, उसको गिन करके हम नहीं दे सकते। जैसे अगर कोई आपको गेहूं या चावल मांगे कि 1 क्विंटल हमको गेहूं गिन करके दीजिए, तो पसीना छोड़ जाएगा। अगर लोग 1 क्विंटल 2 क्विंटल 10 केजी 20 केजी गेहूं गिन करके मांगने लगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको गिन करके दे सकता है। तो गेहूं और चावल जो कि दिखाई देता है, जिसको आप गिन सकते हैं, 10 20 50 की संख्या में गिन सकते हैं, जो आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है, उसको भी अगर कोई कहेगा कि गिन करके दे, तो वो किसी के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचने के लिए हम लोग एक बैग बनाते हैं, पैकेट बनाते हैं, और उसमें 25 केजी का, 50 केजी का, 1 क्विंटल का, उसमें जो है 100 भर करके, और तब गेहूं या चावल या चीनी हम लोग देते हैं। चीनी गिन करके नहीं देते हैं हम लोग, गेहूं गिन करके नहीं देते हैं, चावल गिन करके नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी वस्तु हो जाती है। तो अब हमने पहले ही पढ़ा कि एटम जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। बाकी सारे जितने भी एटम है उसके साइज इतने छोटे होते हैं। या एटम तो की बात तो मॉलिक्यूल को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर उनकी गिनती जो है वो करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक पैकेट बनाते हैं, एंड दैट पैकेट इज मोल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। अब कितना का पैकेट बनाया, तो उसमें जैसे एक 100 किलो गेहूं हमने रखा, उसको हमने कह दिया 1 क्विंटल, 50 किलो रखा बोल दिया आधा क्विंटल। उसी प्रकार से यहाँ पे कितनी मात्रा लेंगे किसी भी सब्सटेंस का, तब उसको हम लोग मोल कहेंगे, उसको हमें देखना है। जैसे आपको कोई बोले 1 डजन, 1 डजन, 1 डजन, 1 डजन कहेगा, 1 डजन बनाना, 1 दर्जन केला अगर कोई आपको बोलेगा क्या दे देगा, 12, तो समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेंचुरी कोई बोलेगा तो आप क्या समझ जाएंगे, 100, 100 को लोग सेंचुरी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 particles are called मोल। इस संख्या को तो मोल कहते हैं। कितना, 6.022 into 10⁻23। ये कितनी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर कोई बोलेगा कि 1 मोल आम हमें चाहिए, इसका मतलब कितना आम चाहिए, कितना, 6.022 into 10⁻23 आम चाहिए। अब इसको हम लोग चाहेंगे कि कितना हो, अगर इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे 1 2 3 0 2 2, और इसके बाद अगर 3 कर जाएगा कितना हो जाएगा, 20, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। इसको कितनी संख्या को हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या को बार बार लिखना आसान नहीं है, और कितनी बार तो गिनती में भी गलती हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कह दिया, 6.022 पार्टिकल्स को
या इस संख्या को हम लोगों ने क्या कहा, एक मोल कहा। और अब तो इस संख्या को भी बार बार नहीं लिखेंगे, एक मोल का मतलब समझ आना है इतना। 6 अभी कोई आपसे कहे हाफ मोल तो कितना हो जाएगा, 1 मोल कितना है, हाफ मोल कितना होगा, 1 पहले कितना होगा, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 और हाफ मोल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 3.011 into 10 to the power 23, हाफ मोल कितना हो जाएगा। अभी कोई कहेगा 2 मोल then it will become 12.044 into 10 to the power 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस नंबर को हम लोग 1 मोल कहते हैं, उसके हिसाब से आधा मोल, 2 मोल हम लोग बता सकते हैं कितना होता है। ये बहुत लार्ज संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है मोल। तो किसी को 1 मोल रुपया है मतलब इतना रुपया, 6.022 into 10 to the power 23 रुपीस है उसके पास में। 1 मोल जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। अब 1 दर्जन केला बोलो, 1 दर्जन रुपया बोलो, 1 दर्जन बैग बोलो, 1 दर्जन बुक बोलो, उसके हिसाब से वो चीजें हो जाएंगी। तो 1 मोल एटम होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल आयंस होंगे, 1 मोल कुछ भी हो सकता है। तो ये मोल है। अब मोल इतना अनमोल है, इतना खूबसूरत नंबर है ये, इतनी इसकी खासियत है कि ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बदल देता है। कैसे? इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। किस नंबर इसको है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। इस नंबर 6.022 को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। तो इसको भी जानना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगर किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल लेते हैं तो उसका मास हो जाएगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12U। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? एटॉमिक मास अभी नहीं जानते ही और निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12U। अब दैट मींस कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12U। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास मींस मास ऑफ 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास मींस mass of 1 molecule. So here is the mass of 1 atom of carbon is 12U, and if we take 1 mole of carbon atom, 1 mole मतलब how much? 6.022 into 10 to the power 23 atom of carbon, then it will become 12 gram. This U will become gram. So mass of 1 mole carbon atom will be 12 gram. तो जैसे एक एटम लेते हैं कार्बन का तो उसका मास होता है 12U, लेकिन जब कार्बन के एटम कितना लेते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल मतलब कितना लेते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम जब लेते हैं तो उसका मास कितना रहता है? नंबर वही रहता है, लेकिन ये किस में बदल जाता है? ग्राम में। 12 ग्राम कार्बन हो जाता है। इसी वजह से लिख सकते हैं मास ऑफ, अगर नंबर में लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल मींस 6.022 into 10 to the power
carbon atom. That means if you take this amount of carbon atom, then the mass of these atoms will be 12 ग्राम. मतलब यदि आप कार्बन के इतने एटम लेते हो, कितने 1 मोल मतलब कितना 6.022 into 1023 एटम लेते हो, किसका कार्बन का, तो उसका मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम. समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, छोड़िए. अगला एग्जांपल से समझिए. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर means H2O is equal to how much? 2 into 1 plus 1 into 16 is equal to 2 plus 16 is equal to 18 U. So this is the molecular mass of water. Any doubt? Because we have already calculated this amount. So 18 U. Now, what is the meaning of molecular mass of water? That means the mass of one molecule of water. How much? One molecule. एक molecule. वाटर का एक मॉलिक्यूल जब लेंगे तो उसका मास कितना होगा? U में होगा, 18 U होगा. Now we take H2O 1 mole molecule. So mass of 1 mole H2O molecule will be simply 80 ग्राम. जैसे ही आप एक मॉलिक्यूल से एक मोल जाते हो, वैसे ही जो U है वो किस बदल जाता है? ग्राम में. मतलब एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 ग्राम. अब इसी को 1 मोल में संख्या में अगर पूछेंगे तो मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecule H2O molecule is equal to 18 gram. So this is your the mass of H2O molecule. How much? 1 mole molecule of H2O is equal to 18 gram. मतलब वाटर का के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स में अगर 1 मोल मॉलिक्यूल लिया हमने, कितना लिया? 1 मोल. उसका मास कितना होगा? 18 ग्राम. और 1 मोल मतलब कितना लिया? 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल अगर लिया किसका? वाटर का, तो उसका मास कितना होगा? 18 ग्राम. अब आप सवाल कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि सर जब ये वाटर के मॉलिक्यूल हम देख ही नहीं सकते हैं, और तो फिर हम इतनी संख्या कैसे लेंगे उसके मॉलिक्यूल का, जब हमें पता ही नहीं है, मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता, तो इतने मॉलिक्यूल नहीं गिनेंगे कैसे? और मान लो दिखाई भी दे तो ये मॉलिक्यूल गिनना तो आसान है क्या? जितना पता लगा गिनने में नहीं खत्म होगा इतनी संख्या, तो फिर हम लेंगे कैसे इतना वाटर? वो 18 होगा कैसे? अब इसको हम लोग उल्टा सोचते हैं. हमने क्या देखा कि इतना मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं तो उसका मास कितना होता है? 18 ग्राम. अब हम क्या करेंगे, आप ही जानेंगे. तो पानी ले लेंगे कुआं से, 18 ग्राम तौल लेंगे. 18 ग्राम तौल तो सकते हैं, तौलना आसान है. तो 18 ग्राम जब आप पानी को तौल लेते हैं तो उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे उसका आप आसानी से बता सकते हैं. कितने होंगे? 1 मोल. यानी 1 मोल मतलब कितना? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल होंगे. अब ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग गिनती करेंगे? सो अब सेकेंड, मान लो कि हम 18 ग्राम नहीं, हमारे पास 9 ग्राम वाटर है. तो 9 ग्राम अगर वाटर हमने लिया तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? हाफ मोल. कितने होंगे? हाफ मोल. इन 18 ग्राम वाटर 1 मोल. इन 9 ग्राम वाटर हाफ मोल. इन 36 ग्राम वाटर
2 mole. So we can, if mole is given, then we can calculate the mass, and if mass is given, then we can calculate the molecule. So it is so easy and so interesting कि यदि हमें मॉलिक्यूल की संख्या दे दे कोई, तो हम उसका मास बता देंगे कि इसका मास कितना होगा, और यदि कोई हमें मास दे दे तो हम बता देंगे उसके मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी। सपोज यहाँ पर जो है इतना मॉलिक्यूल नहीं, हमको किसी ने दे दिया 3.011 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल दिया, H2O मॉलिक्यूल दिया, तो मास कितना हो जाएगा 9 ग्राम। होगा कि नहीं होगा? इतना मॉलिक्यूल का 18 ग्राम, इसका हाफ हमने कर दिया तो उसका मास कितना हो जाएगा 9 ग्राम। अब इसी का अगर डबल कर देगा किसी ने कि मास ऑफ, कोई पूछेगा मास ऑफ 12.044 into 10 to power 23 वाटर मॉलिक्यूल, तो इतनी संख्या हमने दे दिया वाटर मॉलिक्यूल का, उसका मास हमको पूछ रहा है, तो क्योंकि 6.023 में होता है 18 ग्राम, और इसका डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम। अब बहुत क्लियर है। अब इसी प्रकार से इसका उल्टा कि यदि 18 ग्राम वाटर दे दिया किसी ने और उसमें पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 9 ग्राम, वाटर इन 9 ग्राम, तो 18 ग्राम में कितना होता है 1 मोल, 9 ग्राम में कितना होगा हाफ मोल, तो कितना हो जाएगा हाफ मोल। अब इसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम, तो 18 ग्राम में कितना होता है 1 मोल, तो 36 ग्राम में कितना हो जाएगा 2 मोल। अब अगर हमें मास दिया हुआ है तो मोल निकल गया, मोल निकल गया तो हम नंबर ही बता सकते हैं, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है 6.022 into 10 to power 23 होता है। तो 18 ग्राम अगर वाटर लेंगे तो उसमें 1 मोल होगा, और 1 मोल में अगर हमको संख्या पूछेगा कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें दे दे 36 ग्राम वाटर, तो 36 ग्राम वाटर में पूछेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, क्योंकि ये 18 ग्राम में होता है 6.022, तो 36 ग्राम में होगा 12.044 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर कोई 9 ग्राम में पूछेगा तो फिर उसका आधा हो जाएगा 3.011 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हम अगर संख्या दिया हुआ है तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, अगर मास दिया हुआ है तो हम संख्या निकाल सकते हैं, और एक हम फॉर्मूला बता देते हैं। और इसी को 1 मोल के मास को, जैसे 1 मॉलिक्यूल को मास को यू से लिखते हैं, 1 मोल के मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं। अभी हम लोग एक और लेंगे, क्या है कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर, फिर से समझते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is equal to 44U. You have already calculated this. So molecular mass of CO2 is 44U. That means, what is the meaning of molecular mass? Means mass of one molecule of CO2. CO2 का एक मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब सब गेहूं का दाना एक लेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसका मास कितना हो जाएगा 44U। और अगर हम 1 मोल ले लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 44 ग्राम, 1 मोल ले लेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल
इक्वल टू 44 ग्राम। इसी को लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल को संख्या में 6.02 into 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल, मतलब CO2 का तो कितना मॉलिक्यूल ले लेंगे, कितना इतना मतलब कितना 1 मोल, और उसका मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इसी को 1 मोल का जो मास होगा उसको मोलर मास बोलते हैं। इसी को बोलेंगे मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो मोलर मास बोले, 1 मोल का मास बोले, या 6.02 मॉलिक्यूल का मास बोले, तीनों एक ही चीज है और सबका मास कितना होगा यहाँ पर इन दिस केस 44 ग्राम। अब हम नंबर के आधार पर मास निकाले, अगर मास उल्टा हो जाए 22 ग्राम में पूछेगा कि कितना मॉलिक्यूल होगा, 22 ग्राम में इसका आधा होगा, मतलब 3.011 into 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। तो आप आसानी से बस यही इसी को बात को बढ़िया समझना है कि यदि नंबर दे दिया है तो हम मास निकाल देंगे, अगर मास दिया हुआ है तो हम नंबर निकालेंगे। बहुत आसान है। तो अब हम देखते हैं, एक सूत्र निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, given mass upon molar mass is equal to number of moles. So here if given mass is 22 gram and molar mass is 44 gram, so number of moles in suppose question number of moles in 22 gram CO2. So number of moles given mass upon molar mass, so given mass is equal to 22 and molar mass is 44, so 1/2 half mole. Number of mole is equal to half mole and number of molecule is equal to half mole means 3.011 into 10 to the power 23 molecules. तो मोल अगर जानेंगे तो हम संख्या भी बता देंगे और हम मास भी बता देंगे। अब हम कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को इसी के साथ में, मोल के साथ में, और फिर इसी का प्रैक्टिस करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, बहुत सारा जो हमने दिया है आपको, उसके बाद में और फिर से यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जांपल से 1 मोल ऑफ suppose carbon atom, 1 mole of carbon atom, that means 12 gram and 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon. So if 1 mole of carbon atom is taken, then if mass will be half, then it will be 12 gram. Mass will be 12 gram and number will be 6.02223 atom. So by mole you can give the mass as well as number. So mole gives us number as well as mass. Mole gives us numbers as well as mass. हमें मास भी देता है और हमें नंबर भी देता है। जैसे 1 मोल H2O हमने लिया, 1 मोल क्या लिया हमने, H2O लिया। तो इसका अगर हम मास आपको पूछे तो 1 मोल H2O का मास कितना होगा, अभी हमने बताया है कितना होगा 18 ग्राम।
एक मोल का मास जब भी होगा किसमें होगा, ग्राम में होगा। और 1 मोल H2O का जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 molecules, because water is molecule, so here the number will be molecule, the number of molecules. So in 1 mole H2O, the mass of this 1 mole H2O will be 18 gram, and the number of molecules will be 6.0 into 10 to the power 20 molecule. And if you take 2 mole, then it will be into 2 into 2. So now it is very easy to say the number, mass and number of moles. If we have taken 18 gram of H2O, that it will be 1 mole. And if we have taken 36 gram, then it will be 2 mole. If we have taken 90 gram, then number of moles how much? 5 mole. And if we have taken 80 gram, the number will be 1 mole. That means 6.022 will be 3. If we take 36 gram, then number will be double. 12.04 into 10 to the power 23 molecules. If you take 9 gram, it is half mole. That means the number will be 3.011 into 10 to the power 23 molecules. So these are the relations between the mass, number of moles, and number of particles, or number of atoms and molecules. So this is very clear now about concept. This is not hard, but you have to practice the sum given on the basis of this mole concept.